ये दोनों हमारे नए सुपरस्टार्स हैं, both these children, and they are proving it every week. Before I give them numbers, I want to say कि मुझे शमीम हिलाली साहिबा का काम और जो ख़ातून जो माया ये ऐना के जो वालदा कर रही हैं बख्तावर, उनका काम, of course नज़रुल हसन तो हैं ही हैं. मेरा मतलब है I think everybody is just super in this. It's the perfect example of a good script and good direction, because actors हमारे सब बड़े अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में. आप अच्छी स्क्रिप्ट दें और सही डायरेक्शन दें, सब आपको स्टेलर वर्क देते हैं. So everybody, all the elders were fantastic, and the kids are the new superstars. And they've done a fantastic job. I'm giving them both a 10. कहता है ना कि जैसे कि जब अंदर का शोर नहीं हो सकता चुप, तो फिर ऐसे कोई जुमला था ना कि अंदर का शोर नहीं चुप होता तो बाहर इंसान बाहर शोर ज़्यादा मचाता. When he's saying that you have got hiding something. Issues. I mean, I thought this boy was so smart and so well thought out for his age compared to the cousin who's come from abroad. तो एक ये मुझे जो इसके जो डायनामिक्स है ना इन चार बच्चों के बीच में, मुझे इसका बड़ा मज़ा आ रहा है. मुझे सॉरी वो बड़ा मज़े का लगा जब वो इसी में कहता है कि मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा तुम्हें कि लड़की कैसे होती है, तुम तो खुद सिंगल हो. कहता है कोचेस डोंट प्ले हमने खुल के छोड़ दिया है, अब बच्चों की बारी है. तो मुझे खुल के नहीं खेल के छोड़ दिया. हर हफ्ते हम ये तो कहते हैं कि इट्स अ फैमिली ड्रामा, इट्स अ लवली एवरीडे स्टोरी इन अ रेगुलर हाउस. लेकिन आई हैव बीन वाचिंग दीज 4 चिल्ड्रन, दीज 4 कैरेक्टर्स यूथ के जो हैं, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार कितना है इसमें ये जो राइटिंग एंड डायरेक्शन कितनी इट्स डन सो स्मार्टली, बिकॉज लुक एट द वे देव शोन द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द वेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन पाकिस्तान. द स्ट्रीट स्मार्ट्स इज़ डिफरेंट. और ये होता है, हमारे जो बच्चे यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं. I don't know why, but they are. But Atika ji, एक चीज़ आपने और भी नहीं, but नोट की Atika, होगी. look at what we as a nation have gone through. We have gone through 100 people dying every day. We've gone through rifle fire. You know, हमारे मोहल्ले में ये चीज़ें हो रही होती हैं. So we are very hardened. Kids abroad, and we know कि उनकी upbringing वगैरह, everything is so proper and everything is so perfect. Controlled. I think यही वजह है कि जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वहाँ पे जाके. हाँ, because they're hardened, they're street smart. तो हमारा तो है culturally भी, ये I think culturally भी एक और उसमें वो था ना line थी कि there was a lovely line, I'd also written it down, I want to share with you. Cultural tragedy. Oh God, that was beautiful. Cultural tragedy. shock नहीं है, cultural tragedy. तो मेरा मतलब है कि that line I thought was just so fantastic. वो जो कहते हैं अरशद महमूद साहब कहते हैं cultural tragedy. Same is talking about girls not being empowered, and I felt it was brilliant. It actually covered so much in the drama, because actually ये दोनों ये 2 sets of बच्चे जो है ना मुख्तलिफ cultures में पले गए हैं. So you can tell by the way they react or they don't react to things, how the culture and the background is sort of apparent. And मैं तो कहती हूँ in fact ये line इतनी अच्छी कि हम काफ़ी ड्रामों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Cultural tragedy. हाँ, जैसे अभी ये जो हमने जो अभी is a cultural tragedy. Dan, Dine, whatever. वो तो cultural tragedy तो उधर चल रहा है. वो तो shock है, चल रहा है. वो shock है. But I mean, हाँ, but it's such a lovely line, and I think it really, and I'm enjoying the way the children are doing it. ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो performance दे रहे हैं, is very true to the nature of the role, which is lovely. And I think the writing is very intelligent and in depth. यानी कि सिर्फ लिखा नहीं गया, उसका overall एक सोच चल रही है इस ड्रामे में. You know, you can sense there's an understanding of what they're talking about and all, which is very nice. And direction of course is fantastic, because जो काम दिखाया गया है, जो रिश्ते दिखाए गए हैं, सारे रिश्ते very well rounded. जैसे सास बहू बैठती हैं इतने प्यारे से, वो जैसे वो शमीम हिलाली साहब बैठ के टीवी देख रही, ड्रामा देख रही हैं, वो बहू आ जाती है, बात करती है, थैंक यू अम्मी, वो कहती है नहीं बच्चे कोई ज़रूरत नहीं, चल देखना ये देख. एंड आई थिंक दे वर वाचिंग बिस्मिल, बिकॉज कहती है देखो ना ये जवान औरत से शादी करने जा रहा है. मैं कहा ये बिस्मिल का शॉट देख रही हैं. सो थिंग इज दैट आई मीन आई जस्ट लव द वे हाउ ऑल द कैरेक्टर्स हैव काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं. एंड चाहे वो यूथ है या वो वालदैन हैं या दादा दादी हैं, everyone has something sensible to say, which is lovely. And ये नहीं कि preach नहीं कर रहे,
हमें सबक नहीं सिखा रहे, बस लाइफ इज़ कैरिंग ऑन। जब वो एक एक्सीडेंट भी होता है उसके मोटर बाइक के साथ, द वे दे डू द मॉब एंड द वे द डायरेक्शन के मैं हवाले से बात कर रही हूँ, इट वॉज सो बिलीवेबल, सो वेल डन। वो जो मॉब आती है, वो बच्चे को बचा रहा, एक बंदा बचा रहा होता है, बाकी लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई मीन इट वॉज जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी बिलीवेबल, वेरी नेचुरल, एवरी डे स्टोरी जो हमें मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, हम इन सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। हमारे घरों में ये चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे जो बच्चों के साथ चैलेंजेस है वो हो रहे होते हैं, and these are the kind of conversations we have with our children, you know, so it's lovely. So both writer director I give a 10. बहुत अच्छा लगता है इस ड्रामे के बारे में, वो ये है कि सिर्फ जो बड़े हैं घर के उनको समझदारी वाले जुमले नहीं दिए गए, बच्चे भी जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, they also they've been given very good dialogue. In fact, everybody has been given very good characters, very well defined characters, good dialogue, good delivery, or of course, I mean, the actors are just superb, all of them. They've all done a great job, young, old, all of them. And I think the writing is very intelligent. Intelligent and in depth, यानी कि सिर्फ लिखा नहीं गया, उसका ओवरऑल एक सोच चल रही है इस ड्रामे में. You know, you can sense there's an understanding of what they're talking about and all, which is very nice. And direction of course is fantastic, because जो काम दिखाया गया है, जो रिश्ते दिखाए गए हैं, सारे रिश्ते वेरी वेल राउंडेड. जैसे सास बहू बैठती हैं इतने प्यारे से, वो जैसे वो शमीम हिलाली साहब बैठ के टीवी देख रही, ड्रामा देख रही हैं, वो बहू आ जाती है, बात करती है, थैंक यू अम्मी, वो कहती नहीं नहीं बच्चे कोई ज़रूरत नहीं, चल देखना ये देख. एंड आई थिंक दे वर वाचिंग बिस्मिल, बिकॉज कहती है देखो ना ये जवान औरत से शादी करने जा रहे हैं. मैं कहा ये बिस्मिल का शॉट देख रही हैं. सो थिंग इज दैट आई मीन आई जस्ट लव द वे हाउ ऑल द कैरेक्टर्स हैव काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इंटरट्वाइंड है. एंड चाहे वो यूथ है या वो वालदैन हैं या दादा दादी हैं, everyone has something sensible to say, which is lovely. And ये नहीं कि preach नहीं कर रहे, हमें सबक नहीं सिखा रहे, बस life is carrying on. जब वो एक एक्सीडेंट भी होता है उसके मोटर बाइक के साथ, the way they do the mob and the way the direction के मैं हवाले से बात कर रही हूँ, it was so believable, so well done. वो जो मॉब आती है, वो बच्चे को बचा रहा, एक बंदा बचा रहा होता है, बाकी लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं. I mean, it was just, I think it's just a very believable, very natural, everyday story जो हमें मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, हम इन सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं. हमारे घरों में ये चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे जो बच्चों के साथ चैलेंजेस है वो हो रहे होते हैं. And these are the kind of conversations we have with our children, you know, so it's lovely. So both writer director I give a 10. और मुझे इस सीन से एक चीज़ याद आई कि जैसे नादिया ने कहा अभी कि परवरिश सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है. अब इसमें एक फैमिली दिखाई हुई है. हम अक्सर अपने दिलों में कीना रख के बैठे हुए होते हैं. हर घर की कहानी मैंने अपने ख़ानदान में देखा हुआ है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे. अब इसमें बहू कितने आराम से आके अपनी सास से बात कर लेती है कि अम्मी मैं ये फील कर रही हूँ और ये वाला मसला है, और वो उसी मसला सॉल्व हो जाता है. और बहुत सा हम और उसी पे हम लोग अपने दिलों में बातें रख के कुड़ते रहते हैं, और उस इंसान को अपने सामने देख रहे होते हैं और फिर कुड़ते रहते हैं. और अदरवाइज आप इस चीज़ को एड्रेस कर लें, कितनी सिंपल सी बात है, वो चीज़ ठीक हो सकती है. सालों चलती है, सालों चलती है कि उस दिन उन्होंने ये नहीं कहा, फिर सुपरफिशियल होके मिल रहे होते हैं उन्हीं अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, और एक्चुअली दिल से कोई भी बुरा नहीं होता है, यकीन माने. वो सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसको हमें आई थिंक नहीं लाना चाहिए, स्पेशली बात कर ले तो एकदम ठीक हो जाती है, खत्म हो जाती है बात, खत्म हो जाती है. ये आई थिंक सबसे मुश्किल इस वक्त ये है कि बात करना. हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में जी, वो हुए हैं 20,600, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 7,958, 39% मतलब 3.9 हाईएस्ट मिले इनको. मैंने तो पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों हमारे नए सुपरस्टार्स हैं, both these children, and they are proving it every week. Before I give them numbers, I want to say कि मुझे शमीम हिलाली साहिबा का काम, और जो ख़ातून जो माया ये ऐना के जो वालदा कर रही हैं बख्तावर, उनका काम, ऑफ कोर्स नज़रुल हसन तो हैं ही हैं. मेरा मतलब आई थिंक एवरीबडी इज़ जस्ट सुपर इन दिस. इट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट एंड गुड डायरेक्शन, बिकॉज एक्टर्स हमारे सब बड़े अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में. आप अच्छी स्क्रिप्ट दें और सही डायरेक्शन दें, सब आपको स्टेलर वर्क देते हैं.
So everybody, all the elders were fantastic, and the kids are the new superstars. So and they've done a fantastic job. I'm giving them both a 10. मैया जी आपने खाम खादा नंबर काट लिया। आपने खाम खादा नंबर काट हाँ, लिया। ना 10 No, because she had more than I mean, उसने 9.5 गाया is भी ना। almost a 10. उसने OST भी गाया, 2 बनाए। प्यारे। OST तो comes every time, ना? So it's नहीं, not- उसने it's बनाए not- हैं, दो I बनाए। know. Okay, and जी। he's made it right from the get. चलें ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,710 फीमेल कैटेगरी में, और परवरिश से अना आसिफ के हिस्से में आए हैं 4,152, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि आई थिंक अगर हम रेहाम की बात करते तो उनको 1,736 मिले थे, She's also amazing. That जी, lady. Amazing. और हलीमा अली जो हैं उनको 212, उनके थोड़े कम थे वोट। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,600, और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,737, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कोई और लेके जा चुका Obviously, है। Firoz. Didn't he get more last time? Because he won last time. Yes. Last time he नहीं, won. आपको हमारे numbers नंबर्स की वजह से हाँ जीते थे ना। numbers. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू।